Okay, good morning everyone. My name is Vinit Navekar and welcome all of you again on Technology Talk. Today we are going to discuss on the latest technology that is a software, yes, an integrated security software, Higgs Center Professional. And for this we have with us Mr. Mairaj, National Head, Higgs Central, a command control. Mr. Mairaj, welcome to the Technology Talk. Good morning, Reggie, and thank you for having me here. Good morning. Yeah, so today we are going to discuss more and more with Mairaj what exactly the importance of the software because we know we are driving a CCTV cameras. Apart from the camera, we also use access control, intrusion, video intercom, many more security products. ये सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंस रोल फॉर दैट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बहुत सारे फीचर्स जैसे रिपोर्ट लेना मॉनिटरिंग करना इस सभी के काम में आता है so for that today we are going to completely discuss on Higgs Center Professional Software. So Mairaj we will start the session but before starting just we want to announce that to everyone if you have any query in between the session you can type in comment section at the end of the session Mairaj will definitely answer to all your queries as well as in between session we will ask some quiz question to all of you. Those who will give a very right answer quickly, they will get the chance to win exciting prizes from Hikvision. So we'll start the session now, Mairaj. First of all, I would like to know what exactly the Higgs Center software is. Yes, it's a very fantastic question, Viniji. So Higgs Center Professional is basically a command control software, Okay. which is very open platform, integrated command control software. Okay, which is basically designed to meet a versatile security challenges. Okay, you can say it's basically designed to meet a versatile security challenges on one intuitive platform. Okay, so managing from the devices, say for example CCTV, access control, intrusion panel, face recognition, ANPR, etc., to collaborating the devices and of course to make smart decision from the command control operators. Okay, to make the devices efficient and to take the smart decision, we utilize basically Higgs Central. So basically Higgs Central is a command control software which can plug multi items into it and can take action accordingly. So in short, it's an open platform command control software. Yes, that's correct. It's an open platform for the command control software. Yeah. So basically ये सॉफ्टवेयर तो हमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज इसका अवेलेबल है. Apart from that, we can install this software in the hardware also. So yes, this Mairaj ji, this software is basically very good software. Most of the हमारे participants जो भी viewers है, जो भी industry के हमारे सारे partners है, वो ये software जानते हैं. बट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग IBMS 4200 भी वहाँ पे यूज कर रहे हैं. But this software is completely different than IBMS 4200. Yeah. So, as an architecture point of view, how you can elaborate how this software will get properly structured? Okay, good question, Viniji. Actually, IBMS 4200 is basically a single machine, okay? Okay. And IBMS 4200 and can be connected over the HIG Connect, right? That is connected via servers, right? But Higgs Central Professional is a server client structure software, okay? Yes. So you can have your own server into your own premises or over the cloud, whatever you want, and the client, that is the workstation operator, can be connected to the server. Okay, so when you talk about the IVMS, so IVMS is basically a single machine software. Okay, so you cannot have more operators into it, you cannot have more integration into it, you cannot have more SOP or a tailor-made solution or that. But yes, Higgs Central can have multi users, multi operator, multi customer tailor-made solutions, and of course multi operators you can have in Higgs Central, right? Yes. So basically, it's a for typical command control software. If you are using 4200, that means you can use for your shop, of course, for your home, etc. But if you come to the enterprise market or the government verticals or big projects, then definitely you have to have the Higgs Center only, because Higgs Center is not having any limitations, while 4200 having big limitations for the enterprise market. यस दैट्स करेक्ट. आप सभी ने देखा होगा कि जैसे महाराज जी ने कहा 4200 सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर तो अच्छा आपको लाइव व्यू वगैरह प्रोवाइड करता है बट कहीं ना कहीं चैनल्स
Yep. or strain. That is a limitation. So there is a lots of features added in the Higgs Central software. You can see on your screen that architecture as compared with जैसे आपने कहा कि सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर ये IBM Higgs Central प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है. सो दैट मीन्स कि Higgs Central सॉफ्टवेयर अगर हमें मैंने जो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें एक सर्वर लगेगा, सर्वर मशीन. That machine will be I think the minimum requirement will be the i5 machine. i3 भी maybe. Yes, i3 also is a possible. Yes, on i3 we can definitely install the software package. Okay, the server will get installed on the i3, and apart from that, if any multiple clients want to access, they can directly access to this software. Yes, 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 sir. Yes. Vinay ji, you rightly said कि अगर एक लाइट वेट और लाइट इसको कहते हैं एक सेंटर को लाइट वेट एंड मोर एफिशिएंट, राइट. सो जब लाइट वेट आप बात करते हो तो लाइट वेट डजंट मीन लाइट वेट, राइट. इट मींस दैट इट कैन बी इंस्टॉल्ड ओवर i3 मशीन एज वेल. अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है, आपके पास कुछ कैमरास हैं, कुछ एक्सेस कंट्रोल है, कुछ इंट्रूजन पैनल है, तो डेफिनेटली आप उसको i3 मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो. वो हमें परमिट करता है एक सेंट्रल इंस्टॉल करने के लिए एक लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन पे भी. बट यस, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आने वाला है, आपके पास thousands ऑफ कैमरास हैं, आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी है, तो उसके लिए आपको फिर हायर वर्जन्स में जाना पड़ता है, मशीन के हायर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है. बट यस, टू स्टार्ट विद, for low requirement, you can use i3 machine as well. Yes, to start with low requirement, we can use i3 machine Definitely. as well. So, जैसे आर्किटेक्चर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर महाराज जी, here we can add the cameras also. That means Hikvision camera we can add. What is the maximum number it can providing for the i3 machine or up to the higher level? कितने कैमरा में ऐड कर सकता है? Yes sir, एक सिंगल सर्वर. अच्छा सवाल है विनीत जी आपका ये. This is very good question actually, because there are many things in the market that how many number of camera can be connected to the Higgs Central and what will be the server etc etc. So it's a good question. मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आपको एक सिंगल सर्वर की बात करें, क्योंकि Higgs Central प्रोफेशनल के अपने अलग मॉड्यूल्स हैं. Higgs Central प्रोफेशनल मोस्ट बेसिक, Higgs Central एंटरप्राइज और उसका हायर वर्जन होता है Higgs Central मास्टर, राइट. तो Higgs Central प्रोफेशनल जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारा Hikvision का, उसमें आप सिंगल सर्वर पे 10,000 कैमरा कनेक्ट कर सकते हो. सिंगल सर्वर, यहाँ पे वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत जी. एक सिंगल सर्वर पे आप 10,000 कैमरास कनेक्ट कर सकते हो. बट यस, अगर आप हमारा RSM यूज कर सकते हो तो इट्स वेरी फैंटास्टिक. आप 1,00,000 कैमरे कनेक्ट कर सकते हो. Okay, that's very great. So बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने एक साइड पे ये Higgs Central लगा दिया, उसके अंदर मैंने कुछ कैमरास ऐड कर दिए. So that means I added some kind of the channels. Either it is 1,000 channels, 500 channels, or 10,000 channels. So you are telling that one server is providing the 10,000 चैनल कैपेसिटी. Yes sir. अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत है, साइट आपके एक सिटी में है, दूसरी साइट दूसरे सिटी में है, और मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट करने एक रिमोट साइट पे आपको कैमरास कंप्लीटली शो करने, तो 1 लाख तक की कैपेसिटी ये Higgs Central आपको प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम वी आर टॉकिंग ऑन द कैमरा महाराज जी, इट सपोर्ट्स ओनली अ Hikvision कैमरा और द थर्ड पार्टी OnVIF कैमरा आल्सो आई कैन एबल टू ऐड? यस विनीत, डेफिनेटली. डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है कि IBM फोटोग्राफी की बात करें कि Hikvision का ही कैमरा सपोर्ट करता है, वही ऐड होगा, बट थर्ड पार्टी डिवाइसेस अगर मेरे साइट पे पहले से रहेंगे, सो क्या ये Higgs Central Hikvision का सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी डिवाइसेस को भी ऐड कर सकता है? ये डेफिनेटली. दिस इज वेरी वर्थ क्वेश्चन विनीत जी. आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज़ being a tech guys, you know very well things coming in the market, right? So it's a beauty of the software. अगर आपके पास एक Hikvision का कैमरा है, राइट, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, मोस्ट एफिशिएंट. अगर आपके पास अदर OEMs भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अदर OEMs भी हैं, OEM कोई भी हो, अगर वो OnVIF compatible है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर वो OnVIF compatible कैमरा है तो we can connect any camera. एनी कैमरा, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है. अगर वो OnVIF compatible कैमरा है तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट इनटू द Higgs Central. सो इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, राइट. इट्स नॉट लाइक कि ये खाली Hikvision के ही कैमरास के लिए है. नहीं, ये अदर ब्रांड्स भी हो सकते हैं. अगर वो OnVIF compatible है तो डेफिनेटली वी आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट देम. इन फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट, वी आर डूइंग actually in many projects we are doing multiple brands camera connecting into the Higgs Central, and it's doing very well. That's great. That's the beauty of this software. Multiple कैमरा आपके साइट्स पे हो, अलग अलग ब्रांड के हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, बट OnVIF compatible रहने चाहिए. So
इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमें तो पता चला आज कि एक सर्वर और क्लाइंट स्ट्रक्चर है। जी सो सर्वर लेयर, क्लाइंट लेयर एंड द डिवाइस लेयर, ये तीन कैटेगरीज में कंप्लीटली ये सॉफ्टवेयर वहां पे प्रोवाइड होता है आपको। आप आर्किटेक्चर भी जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप हिक्विजन का कैमरास कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल, इंट्रूजन और एनी अदर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर ये कैमरास को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना जी है तो मोस्ट ऑफ द साइट पे मायराज जी की जैसे कि ये सर्वर जो है जी जिसके ऊपर हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें एक आईटी रैक्स में, वहां पे एक आईटी रूम्स में रखना पड़ता है। करेक्ट And the clients we can access, multiple clients can access from remotely. करेक्ट So this client is possible through laptops or desktops, or the mobile application is also support for this. यस सर बहुत ही बढ़िया Because वही रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, अगर मेरे एंड यूजर को कैमरा देखते हैं जी तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? Yes, yes, definitely, Vinit ji. Let me brief about it. Yeah. Hik Central can connect up to 3,000 users. Okay. जब मैं users की बात कर रहा हूँ, विनीत जी, 3,000 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं एक सिंगल सर्वर में, एक सेंट्रल के, एंड साइमल्टेनियसली 100 यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक सर्वर से। और जहां तक आपने बात करी सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर की, और एक रैक हो सकती है, एक सर्वर किसी भी आईटी रूम में या फिर डेटा सेंटर में, तो मैं आपसे बता दूं कि ये सर्वर हमारे क्लाउड पे भी हो सकता है, क्योंकि आजकल एक मार्केट में जैसे ट्रेंड चल रहा है कि आपको AWS, Azure या गूगल सर्विसेज के ऊपर आप अपना सर्वर चाहिए आपको, तो नॉट ओनली द हार्डवेयर इंस्टॉल, वी आर मोर देन हैप्पी टू इंस्टॉल आवर सर्वर onto AWS and Azure cloud as well. And then the client and the workstation can be connected to the server. That's very important because हार्डवेयर इंस्टॉल है, हार्डवेयर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। Correct. अगर मार्केट में आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही है, डायरेक्टली आप क्लाउड के ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। Definitely, sir. And will definitely will work. So about the licensing part of this software, okay? अगर मैं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है किसी मशीन में अगर मैं ये लाइसेंस में अपडेट करता हूँ, जी so what happen means it will require to activate this license on the new machine or the new hardware. यस यस विनीत जी, एक्चुअली होता क्या है कि आपको जब आप एक सॉफ्टवेयर बाय करते हो तो सॉफ्टवेयर के पास मोर देन 150 मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं, Okay. राइट? जैसे आपने कहा कैमरा, तो आपको बताना पड़ेगा ड्यूरिंग द बाइंग कि भाई मेरे को 100 कितने कैमरे के लिए लाइसेंस चाहिए, Right. फिर आपको बताना पड़ेगा मेरे को कितने एक्सेस कंट्रोल के लिए लाइसेंस चाहिए, फिर आपको बताना पड़ेगा कितने इंक्लूजन, कितने आपके फेस रिकग्निशन कैमरास, कितने आपके ANPR कैमरास, कितने UVSS, इनफैक्ट UVSS, we are talking about the inspection, X-ray package, in fact, I would say, in fact, and DVR, mobile DVR, Mobile DVR also. and top of it, you can use, body-on cameras. Okay, so That's it, great. so आपको ये number of devices बताने पड़ेंगे, फिर accordingly हमारे पास regional level पे, HO level पे solution team है experts की, वो आपको एक BOQ डिजाइन कर देगी, and top of it, very good, I remember now we have Hikvision website available, आप वहाँ पे easily कनेक्ट कर सकते हो, Yes. इजीली आप उसको BOQ बना सकते हो खुद से भी। तो आपको जितने भी डिवाइस चाहिए उतने ही डिवाइस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वहाँ पे। राइट, दैट्स ग्रेट। मींस बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सिक्योरिटी प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। जी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पहले से बताना होगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कैमरा इज इन योर प्रोजेक्ट। ओके, आपको पहले बताना है, जज करना है कि आईपी कैमरा आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितने हैं। Correct. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेक द लाइसेंस। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हार्डली एक 70 कैमरास की रिक्वायरमेंट है, जी बट इन फ्यूचर सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जी तो क्वेश्चन एक कस्टमर्स के, हमारे पार्टनर्स के एक मन में रहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक 100 कैमरा के लिए लाइसेंस परचेज कर लिए जी और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने 100 कैमरास का लाइसेंस या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जी बट फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट की साइट है वो अपग्रेड हो रही है, मल्टीपल कैमरा, 100 का नंबर कैमरा का एक 300 400 तक जा सकता है। जी जी विल दिस सॉफ्टवेयर सपोर्ट to extension capability of this? Definitely, Vinay ji, it's again a very good question because you are coming up, and I appreciate your efforts, right? Hik Central is 100% scalable to change anything. Say for example, अभी आपने बताया कि अगर आज मुझे 100 कैमरास के लिए जरूरत है एक Hik Central की, तो डेफिनेटली आप 100 के लिए लीजिए। टुमारो डाउन द लाइन ऑफ 1 year 2 years जब आपके पास 200 या 300 कैमरे होने हैं, तभी आप वो कैमरे को सिर्फ लाइसेंसिंग खरीदिए, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा सॉफ्टवेयर खरीदिए, दैट्स द ब्यूटी। हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ आप 2 कैमरास के लिए, सॉरी 200 कैमरास के लिए सिर्फ पर चैनल लाइसेंस खरीदिए, नो सेपरेट सर्वर, नो सेपरेट क्लाइंट, ओनली लाइसेंसेस। तो आप अभी देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं
200 कैमरास की, राइट? तो 200 कैमरास को आप कनेक्ट कीजिए उसी सर्वर के ऊपर, कोई फर्दर आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं लगने वाला, सिर्फ आपको नंबर ऑफ चैनल लगेंगे, राइट? एट द सेम टाइम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रीफ करूं इस पे कि हमारे पास अपने सर्वर है, जैसे E5 हमारे पास है, उसकी कैपेसिटी है 3000 लाइसेंसेस की, और 3000 लाइसेंसेस में आपको 300 चैनल इनबिल्ट मिलने वाले हैं इस सर्वर के अंदर ही। जैसे हम ओनली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारे पास सर्वर विद हार्डवेयर भी अवेलेबल है। आप हमारा सर्वर लगाते हो तो उस सर्वर पे आपको 300 चैनल फ्री मिलते हैं, इनबिल्ट मिलते हैं उस सर्वर के साथ ही। और अगर फ्यूचर में आपको और ऐड करने हैं तो सेम सर्वर अप टू 3000 कैमरास तक ले सकता है, अप टू 3000 कैमरास तक आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ब्यूटी क्या हुई कि आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, 300 आपको इनबिल्ट मिल गए। उसके बाद आपने क्या किया कि मेरे को 500 और ऐड करने हैं, 200 और ऐड करने हैं, तो अप टू 3000 तक सिर्फ आप पर चैनल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लीजिएगा, एंड दैट्स इट, दिस इज द ब्यूटी। दैट्स वेरी ग्रेट। सो हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर कैसा है, उसमें कैसे लाइसेंस और कैसे कैमरा और कैसे डिवाइस ऐड कर सकते हैं। जी। नाउ Mahiraj ji, first I would like to ask just some highlighted feature of this software. जी। So first of all, what do you tell about how easy this is software for deployment? Okay. Actually. Okay. So basically, when you talk about this question, it's very good, right? It's very good because it's a very easy installation, okay? Easy operation and easy maintenance, to be honest, right? When you talk about the easy installation, that means is a very basic person can also install the software, saying like yes. It's not a very complicated ways to install it. In fact, this is the company strategy that anybody can install and anybody can play around the software. It's so simple actually, right? It's not like very complicated and highly engineered where no, everybody can install and everybody can plug and configure and everything and operate the software. Then easy operation, हमारे पास एक विजार्ड रहता है। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो आपको एक विजार्ड मिल जाता है जो आपको बताता है कि सीसीटीवी को ऐड कैसे करना है, आपको एक्सेस कंट्रोल को ऐड कैसे करना है, ऑपरेटर को ऐड कैसे करना है, ऑपरेटर को ऑपरेट कैसे करना है यूजर्स को। तो आपको कंप्लीट विजार्ड मिल जाता है। तो अगर आप एक बिल्कुल नए यूजर्स भी हैं एक सर्वर के ऊपर तो आपको कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं। वहां पे आप सीधा उसके ऊपर डाल देते हो कि आपको विजार्ड, जैसे ही विजार्ड आया आपके पास में, विजार्ड में आपने देखा कि कितने कनेक्ट होने हैं, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो सारी डिटेल आपको विजार्ड के ऊपर मिल जाती है। उसके बाद आपका आता है इजी मेंटेनेंस, राइट? तो जब इजी मेंटेनेंस की आप बात करते हो तो आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है सॉफ्टवेयर में ही, जिसमें आपको पता चलने वाला है कि मेरी जितनी भी डिवाइस मैंने कनेक्ट करी हुई है उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल फीचर इन दैट यू कैन हैव अ लुक on the device in the dashboard of Higgs Central that how many devices are working। क्योंकि टीम क्या होता है कि जब भी आप हिग सेंट्रल को कनेक्ट करते हो किसी डिवाइस से तो हम देखते हैं डे बाय डे की सिचुएशन में कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है तो विनीत जी पता चलता है वहां पे कैमरा नहीं चल रहा था, राइट? जब लेकिन हिग सेंट्रल आपने लगाया है तो इट्स नॉट अबाउट द कैमरा व्यूइंग सॉफ्टवेयर, it's not about camera viewing software only. Of course it's a camera viewing also, but at the same time you can have the dashboard of the devices, which devices are working or not, okay? Prior to the incident, that is more important। अभी इंसिडेंट हुआ नहीं है, आपको पता चल गया कि मेरे 100 या 1000 कैमरास में से कितने कैमरे चल रहे हैं, कितने ऑन है, कितने अप हैं। तो हेल्थ मॉड्यूल के लिए हम यूज करते हैं इजी मेंटेनेंस, और एक डैशबोर्ड से ही आपको कोई रिपोर्ट नहीं निकालनी है, डैशबोर्ड पे आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने डिवाइस में कितने अप है, कितने डाउन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हमने देखा कि इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन तो बहुत इजी है, Yeah. सॉफ्टवेयर का पैकेज आई थिंक डाउनलोड करो, आप इंस्टॉल करो, रन हो जाएगा, दिस सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली रेडी फॉर यू। यस, बट द इम्पोर्टेंट जो रहता है मेंटेनेंस का, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहता है कि कोई भी डिवाइस अगर ऑफलाइन नेटवर्क के ऊपर चला जाता है जी, क्या मुझे उसका स्टेटस पता चलेगा सॉफ्टवेयर पे? यस, बैठे बैठे आपको सेंट्रली ये स्टेटस पता चलेगा और आप एक्शन वो ले सकते हो और आपके सारे डिवाइसेस को कंटिन्यूअसली ऑनलाइन मोड में रख सकते हो। करेक्ट। तो जैसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां पे रहते हैं और एंड यूजर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरी सारी सिक्योरिटी सिस्टम जो है, जो डिवाइसेस है जी, कंप्लीटली ऑन चाहिए जी, एंड आपको उसको इंश्योर करने के लिए कुछ एक डैशबोर्ड या हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। जी, यस, वी हैव अवेलेबल विद हिग सेंटर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। जी, उसके साथ आपने कहा था महाराज जी की जो सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी है जी, वो भी बहुत अच्छी है। जैसे जी, नॉर्मल छोटे से एक आप 3000 चैनल से लेके एक 10,000 चैनल तक हम्म, एक सर्वर के ऊपर आप ये यूनिफाई पे ऊपर
इंस्टॉल कर सकते हो। जी एज वेल एज इफ यू यूज कैन यूर सर्वर एज वेल एज इफ यू रिक्वायर्ड अ सर्वर फ्रॉम आवर एंड, सो हमारे पास भी ऐसे डायरेक्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बो मशीन्स अवेलेबल है जी जो डायरेक्टली आप आपके साइट पे वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। जी डेफिनेटली विनीत जी, ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी एंटरप्राइज कस्टमर या कोई भी कस्टमर अगर आज कुछ भी इंस्टॉल करता है, इनफैक्ट हम घर पे भी कुछ भी लगाते हैं या फिर मार्केट में, तो हमारी एक वरी रहती है कि भाई हमें वो कितना स्केल हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि मैं आज जो खरीदने वाला हूँ कल वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और मुझे वापस पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये हमेशा रहता है आदमी के दिमाग में जब वो कभी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो यस, एक सेंट्रल एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर टीम, ये स्केलेबल सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार लगाया, अभी कोई नया आपको 100 कैमरा या 100 एक्सेस कंट्रोल डालने हैं तो आपको नया सॉफ्टवेयर लगने वाला नहीं। आपका एग्जिस्टिंग एज इट इज चलता रहेगा और आपको सिर्फ उसके नंबर ऑफ डिवाइसेस के जो चैनल होते हैं बहुत मिनिमल कॉस्ट पे, और वो आपको सिर्फ लेने पड़ते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको पुराने वालों के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है। जहां तक स्केलेबिलिटी की आप बात कर रहे हो विनीत जी, स्केलेबिलिटी में हमने बताया, मैंने पहले भी इसको मेंशन किया है कि स्केलेबिलिटी में हमारे पास अपनी मशीन है, ओके, वो 3000 तक ले सकती है एक सिंगल मशीन, और इनबिल्ट 300 आते हैं उसमें चैनल कैमरास के। और जब आप बात करते हो एक एक जनरल परफॉर्मेंस सर्वर की, जिसको हम E3 कहते हैं, राइट, उसमें आप 10,000 चैनल कनेक्ट कर सकते हो। सिंगल सर्वर पे मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास स्केलेबिलिटी है कि आप नंबर ऑफ सर्वर बढ़ाते जाइए और 10,000 के लोड में आपके चैनल बढ़ते चले जाएंगे, राइट। बट ये एक सिंगल सर्वर पे 10,000 कैमरा ले सकता है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंगल सर्वर पे 10,000 कैमरा ले सकता है। E5 सर्वर आपके पास रहेगा, आप 10,000 कैमरा उसमें ऐड कर सकते हो। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें वेरियस सिनेरियोज के ऊपर महाराज जी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाले जो एंड यूजर्स रहते हैं, जी either they are the security officers जी or the engineers or the IT persons, as well as ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम सीसीटीवी तो ऐड करते हैं, उसके साथ अटेंडेंस, टाइम अटेंडेंस मशीन, एक्सेस कंट्रोल मशीन होती है। जी तो फ्लेक्सिबिलिटी और यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रीसेट मोड कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि सभी को लगता है यार सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यूजर के हिसाब से अलग अलग प्रीसेट मोड इस सॉफ्टवेयर में हमें मिलते हैं। यस डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया सवाल अगेन विनीत जी। इस सॉफ्टवेयर एक पूरी तरीके से मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर है। ये कोई हार्डकोर सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने जैसा लगाया आपको वैसा ही लेना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। ये पूरा का पूरा जो है ना कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है। आप क्या कर सकते हो, आप प्रीसेट मोड सेट कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो कि आप यूजर को रोल डिफाइन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में, आपके आपके ऑफिस में एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक डायरेक्टर्स डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। तो आप एक हर एक यूजर के अगेंस्ट में एक रोल डिफाइन कर सकते हो, और रोल में ये बता सकते हो कि मुझे किस किस डिवाइस का एक्सेस देना है। से फॉर एग्जांपल आप एक ऑपरेटर बिल्डिंग ए है, उसको सिर्फ 10 कैमरे दिखाना चाहते हो। ऑपरेटर बी को आप 20 कैमरे दिखाना चाहते हो। ऑपरेटर सी को आप 30 कैमरे दिखाना चाहते हो। कुछ भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यूजर करना है, यूजर ए, उसके अगेंस्ट में एक रोल डिफाइन करो। रोल में बताओ कि भाई इतना इतना एक्सेस देना है, और उसके अगेंस्ट में एक आप जो है ना उसको कनेक्ट कर दो, सिंपल। सो बेसिकली सिंगल ऑपरेटर कैन यूज A option, operator B can use B option, और operator C can use C option। तो आपके ऊपर है कि आप डिफाइन कैसे कर रहे हो। राइट, सो मल्टीपल ऑपरेटर मोड जैसे स्क्रीन के पे दिखाई दे रहे हैं। एचआर का मोड है, सिक्योरिटी कंट्रोल का मोड है, और सिस्टम इंस्टॉलर का भी वहां पे मोड है। तो इंस्टॉलर जाए या एंड यूजर जाए, उनके लिए अलग अलग मोड क्रिएट करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी फीचर महाराज जी इस सॉफ्टवेयर की हमने ये देखी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कैसे कहा कि एक्सेस कंट्रोल ऐड कर सकते हैं जी। उसके पहले हमने ऐड किया था सीसीटीवी कैमरा जी। Is it possible to get the multiple linkage application for this software? यस यस, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि मेरा कैमरा है, एक्सेस कंट्रोल भी लगा रहा हूं, क्या दोनों इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और मुझे कुछ अच्छी एप्लीकेशन मिल सकती है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विनीत जी, ऑनेस्टली मार्केट के लिए भी और मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए भी, क्योंकि आज in 2022 the market is very mature enough, right? Actually, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मेरे को खाली कैमरे देखने का है, वो उससे किसी ना किसी आइदर वे में कनेक्ट करना चाहता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि एक्सेस कंट्रोल को आप कनेक्ट कर सकते हो। पहला सवाल आपका ये है, जिस पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि यस, हम एक्सेस कंट्रोल को कनेक्ट कर सकते हैं, हम इंट्रूजन को कनेक्ट कर सकते हैं, और एनी ऑफ दैट हार्डवेयर को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक सेंट्रल पे। खाली कैमरा व्यूइंग सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि ये ट्रू ओपन कमांड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जिसको आप मल्टी आइटम्स के लिए कनेक्ट कर सकते हो।
अब आते हैं इसके लिंकेज पे। तो टीम, ये एक ऐसा लिंकेज है कि आप डिफाइन कर सकते हो कि जब एक इंसिडेंट ए होएगी तो उसको बी को क्या एक्शन लेना। से फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे एक्सेस की इलीगल एंट्री हुई है, राइट, तो एक्सेस के अपने इनपुट्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर को पता चला कि यस इलीगल एंट्री है, ऑटोमेटिकली कैमरास को क्या करना चाहिए, कमांड सेंटर में क्या होना चाहिए, वहां पे होटर ऑन ऑफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसको मेल जाना चाहिए, किसको मैसेज जाना चाहिए, क्या फर्दर एक्शन ली जाना चाहिए, कौन सी कॉल पुलिस स्टेशन को जानी चाहिए, कौन सी फायर को जानी चाहिए, कौन सी एम्बुलेंस को जानी चाहिए, वो सारी की सारी जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, वो डिफाइन किए जा सकते हैं एक टेक्नोलॉजी हो। अदरवाइज तो विनीत जी, क्या होता अगर अगर आप एक्सेस बात नहीं कर रहा होता इंट्रूजन से, क्या होता आप सोचो उसके लिए कि एक्सेस का एक अलर्ट आता है एक्स रीजन से, राइट, बट कैमरास को नहीं पता क्या करना है एक्चुअली, राइट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं था, वो मीनिंगलेस था। जब अभी कैमरा को पता है, ऑपरेटर को पता है, राइट, कि मेरे को क्या करने का है, तो वो सीधा उसको एक्स रीजन से अलर्ट आया है, एक्स एरिया से अलर्ट आया हुआ है, उसको पूरा इंफॉर्मेशन उस बिल्डिंग के ऊपर, तभी वो क्या कर सकता है कि अकॉर्डिंगली जो हम एसओपी डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स टीम जो है अक्रॉस द कंट्री, वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को लेती है एंड दे सिट विद द कस्टमर, ओके सर आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम वापस से ये कह रहे हैं कि कोई हार्डकोर सॉफ्टवेयर नहीं है, एक ओपन प्लेटफॉर्म, कस्टमाइजेबल, टेलर मेड सॉल्यूशन आई वुड से, राइट। तो फिर हमारी टीम पूछती है कि आपको क्या करना है, तो उसी हिसाब से वो उनकी उनकी कस्टम रिक्वायरमेंट, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 12 years एंड यू नो thousands of command control projects we have delivered so far, right, across the globe. अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक रिक्वायरमेंट में 5 to 10% डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है हर एक कस्टमर की। आज भी ऐसा लगता है। Every single command control project is 10% new for us, राइट। तो उसके लिए हमारी टीम आपसे एसओपी लेती है और उसी हिसाब से उसको कनेक्ट कर देती है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, एक्सेस से सीसीटीवी को, फेस रिकॉग्निशन से, एएनपीआर से, किसी से भी कनेक्ट करके एक टेलर मेड सॉल्यूशन बना के कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। That's very great. So एक्सेस कंट्रोल मशीन्स को कैमरा के साथ कनेक्ट किया, कोई भी आया दरवाजे के ऊपर, दरवाजा ओपन किया एक्सेस लेके, आपका कैमरा उस मूवमेंट के स्नैप कैप्चर कर लेगा एंड आपको अलर्ट तुरंत प्रोवाइड करेगा। सो एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल और सीसीटीवी कैमरा ये तो हमने देखा, बट महाराज जी समथिंग मोर आई हैव अ डाउट इन माय माइंड। एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल्स के लिए रेगुलर एम्प्लॉइज तो आते हैं, बट उस ऑफिस के अंदर कोई विजिटर्स आता है जी, प्लस उस ऑफिस में बहुत सारे लोग अपनी कार्स लेके आते हैं, करेक्ट। सो विजिटर्स एंड द ANPR linkage, something kind of that we can provide for this. Yes, very good question again, Vinit, because Central is very powerful in terms of visitor management and the ANPR, that is entrance and exit information, right? Automatic number plate recognition systems, right? So basically विजिटर्स के लिए मैं आपसे बताऊं कि हमारे पास इतना पावरफुल टूल है सेंट्रल के ऊपर कि एक आदमी अगर आता है, वो आदमी अपने फोन से हिक्स सेंट्रल के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। इवन कुछ ऑफिस में आपको जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी भी जरूरत नहीं है। आइडियली जब उस आदमी ने घर से रजिस्टर किया, ऑफिस के ऑपरेटर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, द मोमेंट वो ऑफिस की लॉबी में आया तो उसको एक्सेस कंट्रोल खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। लिफ्ट में फ्लोर नंबर 18 या 20 जो भी दिया गया एक्सेस, वहां पे लिफ्ट खुलेगी, वो लिफ्ट के अंदर आएगा, वो केबिन पे फिर हमारा मिल मोटर मिल लगा हुआ है। जब वो एंट्री होएगी तो डिफाइंड रहेगा कि इसके लिए मीटिंग 11 से 12 की या 12 से 1 की जो भी मीटिंग रखी हुई है वो रखी जाएगी। फिर उसके बाद जब वो आदमी छोड़ के जाएगा वहां से ऑफिस में, तो ऑटोमेटिकली उसके एक्सेस को डिलीट कर दिया जाता है सिस्टम के थ्रू, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम, एक कंप्लीट डुअल लेवल ऑफ ऑथेंटिफिकेशन कर रहे हैं विद एक्यूरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, राइट। दूसरा वर्ड आपने यूज किया ANPR का, राइट। हम डुअल लेवल ऑफ ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक कार है, एक कार अगर एक बिल्डिंग या फैसिलिटी या घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर आती है, ऑफ कोर्स कहीं पे भी आ सकती है वो, तो बूम बैरियर खुलेगा क्योंकि सिस्टम को पता है आपका कार नंबर। अगर आपका कार नंबर कुछ है MH1234 या कुछ भी है आपका, तो वो बूम बैरियर खुलेगा क्योंकि सिस्टम को उस कार का नंबर पता है, राइट। अगर वो गाड़ी कोई और ले जा रहा है, पर्सन ए की जगह पर्सन बी भी ले जा रहा है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं, बूम बैरियर खुलेगा क्योंकि सिस्टम को आप गाड़ी का नंबर पता है। विनीत जी, आप कनेक्टिंग की बात कर रहे हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर ओनली, राइट। जब अगर हिक्स सेंट्रल पे हम कनेक्ट कर सकते हैं उस आदमी का फेस प्लस ANPR नंबर, दैट मींस कि जब तक वो आदमी का फेस प्लस गाड़ी का नंबर मैच नहीं होगा,
तब तक बूम बैरियर नहीं खुलेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? ऑफ कोर्स आप फनी सा क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे, मैं उसको क्लियर कर दूं कि अगर वो आदमी, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है या उसकी मदर, कुछ भी है, बच्चे हैं, राइट, वो भी अगर जाएंगे तब भी नहीं खुलेगा, रोज डिफिकल्टी हो जाएगी उसके लिए, राइट? तो ऐसा नहीं है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविजन है कि आप एक गाड़ी पे 4 लोगों या 10 लोगों या 20 लोग, जितने भी आपके लोग हैं, उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली के, राइट? अगर वो फैमिली के मेंबर्स होंगे, वो कार होगी, राइट, तभी वो मेरे खुलेगा, राइट? सो दैट इज डुअल लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट? अदरवाइज अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, अगर एक गाड़ी से कार भी चोरी हो रही है तो तब भी तो बूम मेरे खुल रहा है ना, क्योंकि सोसाइटी को और सिस्टम को तो पता है गाड़ी का नंबर, राइट? तो वो खुलेगा, तभी भी गाड़ी चोरी हो जाएगी। बट अगर फेस से कनेक्ट किया होता तो नहीं खुलती, क्योंकि वहां पे हमने डुअल लेवल ऑथेंटिकेशन किया हुआ है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्स सेंटर। So that's very beauty of the Higgs Central software. Yes, sir. So कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, एक्सेस कंट्रोल और एएनपीआर कैमरा, जी। डिवाइसेस तो सब हार्डवेयर तो हम देख रहे हैं, जी। बट उसको इंटीग्रेट करने का काम ये हिग्स सेंटर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या? कर रहा है। सो वही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने डिस्कस किया, हिग्स सेंटर के सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी वे से हम इंस्टॉल और डिप्लॉय कर सकते हैं। 10,000 तक कैमरास ऐड होते हैं और ये मल्टीपल फीचर्स जैसे आपने अभी जी। कही, वो सारी मल्टीपल फीचर्स हमें मिल रही है यहाँ पे। होप आपके माइंड में बहुत सारे डाउट रहेंगे, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी चैट इंटरेक्शन में पूछे हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। तब तक कहीं जाइएगा नहीं, सेशंस को कनेक्टेड रहेगा। बट राइट नाउ इट्स टाइम ऑफ योर्स, ओके बहिरा जी, हम एक सवाल पूछेंगे, दैट इज अ क्विज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द अवर्स व्यूअर्स। इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप यस for the quiz contest in chat interaction. Come on, आप अगर एक क्विज क्वेश्चन अटेंड करके इनाम जीतना चाहते हो तो चैट इंटरेक्शन में यस टाइप कीजिए। Okay, so we'll now going to display a question number 1 for all of you. देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन देता है। जो पर्सन इस क्वेश्चन का सही जवाब भी तुरंत बहुत ही जल्दी टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे उसका नाम जो है एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू अनाउंस, ही विल गेट डेफिनेटली अ चांस टू विन द डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम एक्विजन टुडे। सो देखते हैं कि अभी आज ये क्विज क्वेश्चन जो पहला है ये क्या है। Okay. Question number 1 for you. Is Higgs Center Professional is OnWave compatible? Higgs Center Professional ये OnWave compatible है? Option A and B you have available. Come on, please type right option which you know. Option A और B. आपका समय अभी शुरू होता है। बहुत ही कम समय है आपके पास, तुरंत आपका सही आंसर टाइप कीजिए आपके कमेंट सेक्शन पे। जो हमारे व्यूअर्स सबसे जल्दी इस आंसर का जवाब देंगे, डेफिनेटली उनको प्राइज मिलेगा हिक्विजन की तरफ से। होप वी आर गेटिंग द आंसर्स इन आवर चैट इंटरेक्शंस। हिग्स सेंटर प्रोफेशनल इज ऑनवेव compatible, A और B? So Maharaj ji, can we discuss what is the right answer for this? Yes, definitely. So yes, Higgs Center Professional is ऑनवेव compatible, जैसे हमने डिस्कस करा किया था कि इक्विजन के अलावा और भी कोई ब्रांड के कैमरा ऐड कर सकती है। Yes, if it is ऑनवेव, definitely it can be supported. Definitely, initial chat we had discussed this, right? Higgs and Professional is OnWave compatible, right? When we talk about the OnWave compatibility, that means you can connect third-party camera also, right? Because OnWave is the protocol for the cameras connected to Higgs Central. So Higgs Central is yes, OnWave compatible software. If you are having third-party cameras, okay, and those are OnWave compatible, then definitely we can connect into the Higgs Central. Hope we have received lots of right answer from Yeah. our viewers, and जिन्होंने सबसे पहला जवाब नहीं दे पाए उनके लिए one more chance you have. Okay, second question को लेके आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। देखते हैं ये second question का विनर कौन है। So question आपके स्क्रीन के ऊपर है, how many video channels are supported by single E5 server of Higgs Center Professional? 100 channel, 1000 channels and 10,000 channels. A, B, C. करेक्ट ऑप्शन आपको टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द राइट आंसर, A, B और C? कितने चैनल सपोर्ट करता है? अगर आप E5 सर्वर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो मैक्सिमम एक सिंगल सर्वर कितने चैनल्स को सपोर्ट करता है? आपका सही जवाब आपके चैट इंटरेक्शन में वहां पे आप टाइप कर सकते हो। यस, मैं यहाँ पे और क्लियर करूँ इस सवाल पे विनीत जी। ये हमारी एक अपनी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रहती है।
सॉफ्टवेयर के ऊपर हार्डवेयर कितना कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट है वो हमारी डेटा शीट आप कहीं से भी डाउनलोड कर यस सकते हो यस विजन की ग्लोबल वेबसाइट से, राइट? और ये हम भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो ये सवाल सीधा है कि आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट आपको एक सिंगल हिक सेंट्रल प्रोफेशनल कितने चैनल कनेक्ट कर सकता है? हिक सेंट्रल प्रोफेशनल, राइट क्योंकि टीम नो नीड टू कंफ्यूज बिकॉज हिक सेंट्रल इज हैविंग इट्स ओन three version of it. Say for example, हिक सेंट्रल for professional, हिक सेंट्रल मास्टर एंड हिक सेंट्रल एंटरप्राइज। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खाली हिक सेंट्रल प्रोफेशनल की। तो एक हिक सेंट्रल के सिंगल सर्वर पे कितने कैमरा कनेक्ट हो सकते हैं? वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी डिफरेंट है, आइदर वो E57S नहीं है बल्कि वो कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है जो हम दे सकते हैं आपको। सवाल है कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर हिक सेंट्रल पे कितने कैमरे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? So we'll see the right answer. It's a 10,000 maximum channel supports. So either it's the E5 or depend on your hardware, it's a maximum hardware. Definitely a single server supports a 10,000 channels. यस। So मेरा जो definitely हमने देख लिया कि बहुत सारे ये ऑप्शंस और क्वेश्चंस तो माइंड में बहुत सारे लोगों के रहते हैं, बट यस डेटा शीट उसको रीड करना, सॉफ्टवेयर का वर्जन जैसे जैसे चेंज होता है डेफिनेटली द कंपैटिबिलिटी आल्सो विल चेंज। सो हार्डवेयर के हिसाब से आपको ये सॉफ्टवेयर वहां पे रिकमेंड करना है। यू कैन टेक द आवर टीम सपोर्ट्स एज वेल एज यू कैन प्रेफर द data sheet or the website. Definitely you will get the chance to perfectly provide the better solution of this software. सो मेरा जी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या है, बहुत सारे फीचर्स है, बट नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो मॉडल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग सीसीटीवी कैमरास को वहां पे ऐड करते हैं, तो वीडियो मॉडल्स की अगर बात करें, ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स वी आर गेटिंग जस्ट आफ्टर एडिंग द सिंपली आईपी कैमरा? जी जी, यस। तो लाइक लाइव व्यू, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे लाइव व्यू अलग अलग व्यूइंग चाहिए, ऐसे क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं वीडियो मॉडल्स में? Yes, it's a good question, विनीत जी। Actually, what happens जब आप वीडियो मॉड्यूल की बात करते हैं तो आपको NVR जिस तरह से आपको कैमरास दिखाता है, तो इसमें एक सेंट्रल पे जब आप कनेक्ट कर सकते हो किसी NVR या कैमरास को, तो होता क्या है कि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप कस्टमाइज व्यू कर सकते हो, राइट? जब हम कस्टमाइज व्यू की बात करते हैं तो आपको एक कैमरा को प्लस दिखाना है, एक को माइनस दिखाना है, एक को छोटा, एक को बड़ा, और जितने भी उसके हो सकते हैं फ्लुएंट व्यू आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरह से वीडियो देखना है, आप अपने हिसाब से भी वीडियो देख सकते हो, राइट? ये हम प्ले कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टोरेज आप कर सकते हो वीडियो के साथ। जब हम फ्लेक्सिबल स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपको 24/7 रिकॉर्डिंग करनी है, आप उसको इवेंट बेस्ड भी कर सकते हो, आप उसको टाइम लिमिटेशन भी लगा सकते हो, आप जो चाहिए वो करिए। आपको एज इट इज सिस्टम, हम अगेन मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये एक हार्डकोर सिस्टम नहीं है बल्कि एक फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन टेलर मेड सॉल्यूशन है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टम कीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से इवेंट बेस पे, अलर्ट बेस पे, या फिर आपको टाइम बेस पे, ड्यूरेशन बेस पे वो आप फ्लेक्सिबल स्टोरेज आपका कर सकते हो। तीसरी इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है वो क्विक सर्च, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जब क्विक सर्च आप बात करते हो कि आपको अदरवाइज तो आपको पूरा ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 24 घंटे की या फिर एक महीने की, आपको 30 डेज की आपके पास रिकॉर्डिंग्स है और कोई इंसिडेंट आप ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो उसमें फिर आपको टाइम लगता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेंटल, देन यू हैव वी पुट द स्टैम्प ऑन द इंसिडेंट, राइट? एंड बाय दैट स्टैम्प नंबर, बाय दैट incident number, by the name, by the time, you can search into X Central. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने हिसाब से, आपको 30 डेज का रिकॉर्डिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, बट स्पेसिफिकली वो टाइम ड्यूरेशन और उस इंसिडेंट पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हो। राइट, सो टाइम ड्यूरेशन पे जाके सर्च कर सकते हैं। क्विक सर्च, लाइव व्यू के अलग अलग व्यूज, आप जैसे मल्टीपल एक स्क्रीन के ऊपर मुझे 25 कैमरा चाहिए, बट अगर जब मेरे पास अगर मल्टीपल स्क्रीन्स आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के ऊपर वहां पे 100 कैमरास, 200 कैमरास है, 200 कैमरास को एक साथ देखना है, तो डेफिनेटली इट्स आल्सो पॉसिबल विद द मल्टीपल स्क्रीन, मीनिंग दैट वी कैन से द ऑक्सिलरी स्क्रीन इन द हिक सेंट्रल सॉफ्टवेयर। सो जस्ट मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट कीजिए, आप एक साथ मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर मल्टीपल कैमरास आपके देख सकते हो। फ्लेक्सिबल स्टोरेज का जैसे कहा मैंने जी, आपने बात किया, तो स्टोरेज के अंदर हम वहां पे नॉर्मल एनवीआर तो ऐड करते हैं, बट एनवीआर के साथ साथ वहां पे रिकॉर्डिंग के लिए अलग अलग ऑप्शन चाहिए रहते हैं लोगों को, जैसे सेंट्रलाइज स्टोरेज, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपी कैमरा ऐड करते हैं बट मल्टीपल आईपी कैमरा है, सेंट्रलाइज नेटवर्क स्टोरेज वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। या कुछ साइट पे ऑलरेडी उनके सर्वर रहते हैं, स्टोरेज सर्वर, जिनके अंदर उनको रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके अंदर हमारे कैमरास की रिकॉर्डिंग हो।
जी जी. So what are the flexible storage options we have? Yes, we are having because Hikvision is having its own detailed range of the products, right? We Okay. do have NVR for the recording system. We do have CVR for the central recording system. We do have P Store, guys, because P Store is basically plain software for recording the cameras, right? So we are having different way of recording the cameras. One, the NVR. Second is the P Store, only software, that is. थर्ड वन इज द सीवीआर सेंट्रल वीडियो रिकॉर्डिंग, राइट? तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक तरह से रिकॉर्डिंग की नहीं, बल्कि कई लोग कहते हैं कि हमें लोकल पे भी चाहिए और एट द सेम टाइम हमको प्राइवेट क्लाउड पे भी चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर टू रिकॉर्ड द कैमरास, ओके? सेंट्रल कमांड सेंटर पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उस पे फिर आपको एक सेंटर लगा के वहाँ पे उसको व्यूइंग किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. राइट राइट. सो ये तो सीसीटीवी का हमने देखा. एक्सेस कंट्रोल की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेस कंट्रोल के बेसिक फंक्शंस मुझे क्या मिलेंगे, एंड कितने नंबर ऑफ डोर्स सपोर्ट करेगा, कितने नंबर ऑफ पर्संस ये सपोर्ट करेगा, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू. जी. तो उसमें क्या करना है आपको कि हमारे पास एक डिटेल रेंज है इसकी, ओके? जब एक्सेस कंट्रोल की आप बात करते हो तो फ्लेक्सिबल एक्सेस कंट्रोल आप कर सकते हो, उसको किसी भी तरह से एक्सेस दे सकते हो, जैसे आप फिंगर से दे सकते हो, आप फेस से दे सकते हो, आप उसको क्यूआर कोड से दे सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. इजी एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस रहते हैं इसके, राइट? एंड रियल टाइम अब नॉर्मल हैंडलिंग उसकी आप रहती है. तो उसका एक पूरा डेटा शीट है जहाँ पे आपको डिवाइसेस प्लस आपके पास 1024 डोर्स एंड फ्लोर्स एक टोटल आप कर सकते हो. जहां तक आप बात कर सकते हो पर्सन कनेक्टेड की, आई थिंक 50,000 मिनिमम, सॉरी अप टू 50,000 पर्सन आप कनेक्ट कर सकते हो. और क्रेडेंशियल की आप जब बात करते हो तो 250,000, 2.5 लाख जो क्रेडेंशियल्स हैं, कार्ड्स हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स हो सकती हैं, जो मिला के वो भी 2.5 लाख से ज्यादा तक आप कर सकते हो. तो ये लिटिल बिट ऑफ क्रेडेंशियल्स हैं. ऑफ कोर्स वी कीप अपग्रेडिंग, राइट? वी कीप अपग्रेडिंग डे बाय डे, और ये अभी 50,000 से वो लाख होने वाला है जल्दी ही, राइट? तो ये बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं एक सैंडल के, जो एक वाइड रेंज आपको देते हैं कनेक्टिविटी की. सो परमिशन की भी बात करें, अगर एक्सेस लेवल अलग अलग पर्संस को अलग अलग डोर्स का एक्सेस देना, जी जी जी. सो ये भी परमिशन शायद ये एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर बहुत सारी परमिशन हमें प्रोवाइड करता है. बिल्कुल तो बिल्कुल. मल्टीपल ग्रुप्स है, जैसे मल्टीपल ग्रुप्स को उसी पर्टिकुलर एरिया की परमिशन चाहिए, जी वी कैन एबल टू एक्सेस. जी जी. मैंने पहले भी बताया जी आपको कि 5 क्रेडेंशियल टाइप्स है हमारे पास. चाहे तो फेस रिकॉग्निशन से आप कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, पिन से कर सकते हो, क्यूआर कोड से कर सकते हो, राइट? 512 एक्सेस लेवल है हमारे पास. आप एक्सेस लेवल डिफाइन कर सकते हो एक्सेस परमिशन के, ओके? और फिर उसको डोर्स और क्लोज को 512 में आप ब्रेक कर सकते हो. 5 एडवांस एक्सेस स्ट्रेटजीज हमारे पास, जैसे आपके पास मल्टी डोर इंटरलॉकिंग, फर्स्ट कार्ड, मल्टी ऑथेंटिकेशन एंड रिमेन ओपन क्लोज. तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है एक्सेस कंट्रोल के ऊपर, जो आपको बेनिफिट देते हैं एक डिटेल प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए, राइट? क्योंकि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक होटल है या एक बड़ी कॉर्पोरेट जो है ना बिल्डिंग है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट प्रेमिसेस होंगे, तो हर एक के लिए आप डिफरेंट यूटिलाइज कर सकते हो. विजिटर की भी बात करें, विजिटर जो रजिस्टर होते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अलग अलग मोड चाहिए विजिटर रजिस्ट्रेशन की. सिंपली आए, कुछ जस्ट डिटेल प्रोवाइड करें और विजिटर का रजिस्ट्रेशन इस सिस्टम में हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि रजिस्टर, जो विजिटर्स है वो कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. ऐसा नहीं है कि उसको ऑपरेटर के पास जाए, वहाँ पे आपका जो रिसेप्शनिस्ट के पास जाए और वहाँ पे नहीं, आप अपने फोन से कर सकते हो. जो जैसे उसको एक्सेस मिला है, इनफैक्ट यहाँ तो एक्सेस हम दे सकते हैं कि आपको बिल्डिंग ए के फ्लोर ए के लिफ्ट ए के ऑफिस में जाना है, तो आप ऑपरेटर को, और फिर वहाँ पे उतने टाइम की ड्यूरेशन है, और उसके बाद आपको जो वहाँ पे आपको मीटिंग रूम है वो असाइन हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे उसको क्लोज कर दिया जा सकता है जैसे विजिटर वहाँ से चला गया है, राइट? तो वो सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है हमारे पास. Yes, तो एक्सेस कंट्रोल का हमने देखा, बट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट आती है जी. व्हेनेवर देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ द थ्रेट्स हैपन, जी. कैन यू टेक द स्मार्ट डिसीजन एंड हैंडल दैट पर्टिकुलर थ्रेट्स ऑन द मोमेंट? Yes. कुछ ऐसी एक ये सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी हमें मिली. Definitely, Viniji, the software is very smart, right? In terms of handle threat at a moment, I would say, right? What happens? We can linkage the system. Say, for example, if there is a fire in a building, right? What happens? If it's a fire in the building, then what access control should do? Which gate should be open? Which gate should be closed? Okay? और वहाँ पे क्या एक्शन होना चाहिए? किस एरिया से आ रहा है? और फर्दर एक्शन क्या लेना चाहिए? अदरवाइज आप बिलीव करो, अगर एक इंसिडेंट है, उस पे वहाँ पे फायर हुई है,
राइट। तो लोगों में पैनिक है, ये नहीं पता चल पा रहा है किधर से आना है किधर से जाना है, एक बहुत ही खराब सिचुएशन है। बट अगर एक सेंटर से कनेक्टेड है तो वहां पे उनको गाइड किया सकता है कि ऑल प्लीज गो वाया डोर नंबर ए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम लिंकेज कर सकते हैं सीसीटीवी को, एक्सेस कंट्रोल को, एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू द हिक सेंटर, जो एक पैनिक की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। दैट्स ग्रेट। हैंडल पैनिक वाला सिचुएशन आप इजीली कर सकते हो एक्सेस सॉफ्टवेयर से। एक्सेस कंट्रोल तो हमने देखा बहुत सारे लोग आते हैं एम्प्लॉय स्टाफ में, बट अटेंडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अटेंडेंस में हमें यहाँ क्या क्या अलग अलग फीचर्स वहाँ पे मिल रही है, स्पेशली हम अगर देखना चाहे कि एक स्पेशल फीचर्स हमें अटेंडेंस में रिपोर्ट्स वगैरह अलग अलग कैसे आ सकते हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर के साथ। हाँ बिल्कुल, ये भी एक ब्यूटीफुल फीचर है अटेंडेंस का, कि आप टाइम अटेंडेंस जो है आपको इजियर कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक कैशियर है कंपनी में, वो किसी और टाइम पे आता है, एक पोर्टर है किसी और टाइम पे आता है, सेल्समैन किसी और टाइम पे आता है, रिसेप्शन किसी और टाइम पे आता है, राइट। और फैक्ट्री सबके टाइम अलग अलग है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक सेंट्रल कि आप अपने हिसाब से कस्टम करिए कि किसको कितने आवर्स रहना है, और फिर इस अटेंडेंस को आप एक डेटाबेस के सिंक्रोनाइज कर सकते हो, राइट, माईसीक्वल और एमएसक्यूएल के थ्रू, राइट, या ओरेकल के थ्रू, और वाया एक्सेस रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास अपनी ओपन एपीआई है तो आप उसके अंदर कनेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से डेटा कहीं और डंप भी कर सकते हो। ओके, सो डेटा कहीं डंप करना है, डेफिनेटली आपको अटेंडेंस रिपोर्ट देना है, यू कैन यूज इट। So no problem, Mehraj ji, we have seen a lots of things over here, but just अगर बात करें कि वीडियो इंटरकॉम की जी, so वीडियो इंटरकॉम के बारे में आपका मतलब क्या क्या फीचर्स बेसिकली जानना चाह रहे हैं हमारे लोग, कि वीडियो इंटरकॉम को ये सपोर्ट करता है क्या बेसिक फीचर? डेफिनेटली यही इंटेंशन है हमारी कि एक सेंट्रल पे ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर जो हिट के प्रोडक्ट्स हैं या अदर भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। अगर मैं यही इंटरकॉम की बात करूं कि हमारे पास 100 up to 1024 इंडोर स्टेशन एंड 512 आउटडोर स्टेशन की सपोर्ट करता है एक सेंट्रल, राइट। एक सेंट्रल प्रोफेशनल से आप पूरा मैनेज कर सकते हो, चाहे आपके पास मास्टर स्टेशन हो एक सेंट्रल प्रोफेशनल में कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास 2 वायर आईपी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कनेक्ट करके उनको मॉड्यूलर डोर स्टेशन से लाके उनको मास्टर स्टेशन से कनेक्ट कर जा सकते हैं। यानी हर एक पर एक फ्लैट से, पर एक बिल्डिंग से, पर एक जो सूट से वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके एक सेंट्रलाइज वे में एक सेंट्रल कनेक्ट करके वहां से एक्शन डिफाइन किया सकते हैं और लिए जा सकते हैं। ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो हमने देखा मेहराज जी की ये सपोर्ट तो सारा का वीडियो इंटरकॉम एक्सेस कंट्रोल सभी सपोर्ट करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अलार्म्स का जी, इंट्रूजन अलार्म जी। सो इट सपोर्ट द सिक्योरिटी पैनल्स ऑफ द हिक्विजन एंड ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस। Yes, definitely. We do have connectivity. In fact, we have delivered the projects in India in a very huge quantity. We cannot, disclose the name, but yes, we have delivered. We have intrusion panels from our side, okay, from Prama Vision, and we can, connect these intrusion panel, Action Hub, and then IRMS, of course, into the HIG Central Professional. Okay, that's great, sir. Now, it's an important thing is that here we can provide another different things like intrusion panels, so हमने देखा, और एक्सेस कंट्रोल देखा, वीडियो इंटरकॉम देखा। सीसीटीवी कैमरा का ही बात करें तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी कुछ इंटेलिजेंट कैमरास है एआई बेस्ड। तो क्या ये एआई बेस्ड फीचर्स को, एनालिटिक्स को ये सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है? यस, बिल्कुल विनीत जी, देखिए हमारे पास, बिकॉज वी आर लीडिंग इन द एआई टेक्नोलॉजी आल्सो, एंड वी डू हैव वेरी बिग R&D center for Hikvision, right? We are having very experts in the AI, and we are coming up with the new technology, right? Because these days AI is booming up, and ML and DL, machine learning and deep learning, we are working with. So our cameras, our NVRs are very intelligent enough to filter the requirement. Say for example, we have behavior analysis camera, we have face recognition camera, we have ANPR cameras, we have XYZ. In fact, today we have robotics as well. So HIG Central basically can capture the AI functionality done by the cameras, and further action can be taken. Okay, so we do have the face masking, and we do have the temperature analysis, we do have the queue management, people counting. So we do have every single thing, whatever you need, we do have everything in terms of AI, sir. That's very important. Yeah. So AI का देखा, अलग अलग मल्टीपल कैमरास देखे, हमने सारे डिवाइसेस तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए मेरे। Now it's important is that how this HIG Center professional play a role in the command center especially. जी। So उसके लिए आप क्या कैसे कहना चाहते हैं? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, देखिए विनीत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब आपके पास हिग सेंट्रल आपने या कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म कमांड कंट्रोल आपने इंस्टॉल किया अपने कमांड सेंटर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप
उनसे जब आपने इंटीग्रेशन, एक सब्जेक्टिव वर्ड है मार्केट के अंदर, इंटीग्रेशन, राइट, आपने इंटीग्रेशन किया एक्सेस कंट्रोल का, इंट्रूजन पैनल का, फेस रिकॉग्निशन के, एएनपीआर का, कैमरास का, एक्स वाई जी, राइट। सो आप उस इंटीग्रेशन से चाहते क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं एक कमांड सेंटर में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेशन हमने किया है अपने प्रोडक्ट्स को लेके या अदर प्रोडक्ट्स को लेके, तो हम क्या करते हैं, एक एसओपी डिफाइन करते हैं, एक टेलर मेड सोल्यूशन बनाते हैं, राइट, कि अगर अलर्ट ए रीजन से, एक्स बिल्डिंग से, एक्स एरिया से आया हुआ है तो फर्दर एक्शन क्या लिए जाने चाहिए, और ये सब डिफाइंड होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर। हर एक रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक कस्टमर अलग है, उसकी अपने पेन है, हर एक इंडस्ट्री अलग है, राइट, उसके अपने पेन है। वो सारों को हम फिर एक डिफाइन करते हैं, एक रूल, एक एसओपी, एक टेलर मेड, एंड देन वी मेक एक्शन एंड वी टेक एक्शन एंड वी मेक द प्रोसीजर फॉर दैट। ओके, सो कमांड सेंटर की बात करें, स्पेशली वीडियो वॉल्स जहाँ पे लगते हैं, जी, सो इज दिस सपोर्ट स्मार्ट वॉल्स आल्सो एंड दिस डिवाइसेस? यस। देखिए, हमारे पास जब हम एक्सएमएल की बात करते हैं तो आप एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग का ऑप्शन देते हैं, क्विक अलार्म का आपको ऑप्शन देते हैं, राइट, और हम आपको ऑप्शन देते हैं स्मार्ट वॉल फंक्शन ओवरव्यू का भी। होता क्या है कि कई बार डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की होते हैं सिस्टम्स, तो हमारे पास अपना एंड टू एंड सॉल्यूशंस है, हमारे पास अपने डिकोडर्स हैं, हमारे पास अपने वॉल्स हैं, हमारे पास अपनी सॉफ्टवेयर है, हमारे पास अपने हार्डवेयर है, राइट। ऑफ कोर्स वी आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद द थर्ड पार्टी एज वेल, but yes, we do have our own smart wall, and external can be connected very easily, very smoothly onto the smart wall as well. दैट्स वेरी ग्रेट कि कमांड कंट्रोल का हमने देखा, उसके साथ जो सबसे पहले वीडियो वॉल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो वॉल सेटअप करना है तो उसका जो डिकोडर है यू कैन इजीली ऐड इन द हिक्सेंटल सॉफ्टवेयर एंड यू कैन डिकोड द मल्टीपल कैमरास ऑन योर स्क्रीन। सो जो ऑपरेशन रहता है, कैमरा का स्विचिंग रहता है, ये सारा आप हिक्सेंटल से बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। Now, in terms of this command control software, I would like to ask Bhairaji, how this command control actually work in terms of alarm notification, then reports अलग-अलग जो हमें मिलते हैं, and health monitoring and maintenance की अगर बात करें, so उसके लिए command control software कैसे आपको काम में आता है? देखिए, होता क्या है कि विनीत जी, जब आप एक कमांड सेंटर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है कि सब सिस्टम्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना। जब आप डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो फिर आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखना उसके लिए कि आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी जब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उनको अपने अंदर कनेक्ट करना, पहला रिक्वायरमेंट कमांड सेंटर का। दूसरा, उनके पास मल्टी लिंकेज बनाना, कि अगर इंसिडेंट ए की वजह से आई है, रीजन ए से, तो टेक्नोलॉजी बी को क्या करना चाहिए। आप लिंकेज बनाते हो, आप वर्चुअल कनेक्टिविटी देते हो आप डिवाइसेस को। पहला आपने फिजिकल कनेक्टिविटी दी, उसके बाद आपने वर्चुअल कनेक्टिविटी दी डिवाइसेस को, उसके बाद आपने बनाई एसओपी या सिस्टम लिंकेज। तो कमांड सेंटर का तरीका होता है कि आपको पहले अलार्म देना होता है, उसका रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, सॉरी, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपके पास इंट्रूजन हो सकता है, एक्सेस कंट्रोल्स हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, आपके पास एनालिटिक्स से हो सकता है, इनफैक्ट ओके, एआई का अलार्म हो सकता है, कुछ भी अलर्ट हो सकता है। उस अलर्ट पे फिर उस पे एक्शन क्या लिया जाना है, जब एक्शन भी लिया गया उसके बाद उसके पास उसकी एक रिपोर्ट आती है कि भाई रिपोर्ट में आप क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट देख सके कि उसको एक रिपोर्ट में क्या मिलने वाला है, कौन से एरिया से सबसे ज्यादा अलर्ट आ रहे हैं और किस रीजन से आ रहे हैं, ताकि वो फर्दर एक्शन ले सके मैनेजमेंट, राइट। तो टिपिकल तरीका है, अलार्म नोटिफिकेशन आता है आपके पास, अलार्म नोटिफिकेशन से उसे कैमरा देके व्यूइंग कर लिया और उसके बाद रिपोर्ट्स बन गए, टिपिकल तरीके कमांड सेंटर का। ओके, सो हेल्थ मॉनिटरिंग में भी जैसे आपने कहा कि डायरेक्टली कोई भी अगर कैमरा ऑफलाइन है तो वो हमें पता चलेगा। बिल्कुल। सो दैट्स वेरी ब्यूटी, क्योंकि लाइव व्यू में आप कैमरा को मॉनिटर कर रहे हो, कैमरा का नेटवर्क चला गया तो डायरेक्टली आपको वहां पे सॉफ्टवेयर में पता चल सकता है कि कौन सा कैमरा था, आईपी एड्रेस क्या था, देन ये सारा आपको ट्रेस आउट करने के लिए इजी जाता है। एज वेल यू कैन टेक द पुल आउट द रिपोर्ट्स आल्सो। बिल्कुल। सो वेरी गुड थिंग्स आर अवेलेबल विद द एक्चुअल इन द कमांड कंट्रोल सेंटर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द थर्ड पार्टी सिस्टम सपोर्ट। जी। So will our this X-Center professional software can be get integrated with the third-party system? Yes, I initially I said earlier, I also said same thing, that we are having very open, platform. We are having very open API also, right? To be honest, Vinay ji, we can connect, okay, third party system into the Hixendal. Also, we can give our API also to the third party software companies or any other person, okay. So if he wants to develop some other feature around the Hixendal, we are more than happy to give our open API, right? So we are okay in both way. Either we can connect the third party system into the Hixendal, or else we can give our API to the third party system. So we are okay in both ways.
दैट्स वेरी ग्रेट. सो अलग अलग फीचर्स है, थर्ड पार्टी सपोर्ट भी सॉफ्टवेयर का कर रहा है. सो हमारे व्यूवर्स के कुछ चैट सेक्शन में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट है. वी विल सी वन बाय वन क्वेश्चन. One of viewer provide the question like that. I have a 5,000 plus camera setup. Okay. What machine can we use probably? Hmm. So 5,000 सेटअप का उनके पास कैमरा है, कौन सी मशीन लगेगी वो पूछ रहे हैं. Okay, good. Very good question, team. Actually, we do have a very good configuration for this. Generally, आप एक Xeon सर्वर लगा सकते हैं 32 GB के साथ में, right? 8 कोर आप एक सर्वर लगा सकते हैं. Of course, ये हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है. आप एक सेंट्रल की अगर आप एक गाइड देखते हैं वहाँ पे, तो आपको कितने कैमरे के लिए कितनी मशीन चाहिए वो डिटेल अवेलेबल है. मे भी आपको और हमारी टीम आपको वो शेयर कर सकती है कि कितना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 5000 के लिए. लेकिन जनरल मैंने आपको बता दिया 32 GB के साथ एक Xeon सर्वर मोर देन सफिशिएंट है. That's great. So second question is UHF RFID reader integration is possible with Xcentral? Yes, definitely. In fact, we are doing. In fact, we do have our own product range that is also 100% doable. Without static IP supported, cloud support HIC connect other location? Yes, it's a good question actually. Again, team, I'm coming up because we have two products, right? One is IVMS 400, that is free software. That is second one is Hixendel, that is paid software, right? So IVMS basically a free software, so you can connect over ISUP, which is our own protocol, okay, without connecting to the static IP. But for sure, for Hixendel, you have to have VPN connectivity either through the static IP, through the VPN or static IP router, whatever you use. But the requirement of the software is that the server of the software and the devices should be pinging on the continuous basis. It won't work on the dynamic IP. It can work dynamic IP only HIC products, right? We do have our own ISUP, but yes, if you are using third-party hardware, then you have to have same VPN. Yes, definitely. Through ISUP is also possible. Through ISUP हम अपना कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को हम कर सकते हैं डायनेमिक आईपी पे, बट आपको एक थर्ड पार्टी के लिए एक VPN की जरूरत पड़ती है. One more question we have received: is it possible to get a two-way communication with this software? Yes, definitely. We are having inbuilt tool. We can have two-way communication because there are many ways of two-way communication. One is you can speak two-way, right? Say for example, for a example of ATM. So if somebody is doing some bad things, so you can ask from the command center, hello, what are you doing? Okay. So one way of two-way communication. Second way is you can turn around, on the router. Okay. Two-way communication are two-way actually, right? One is you can communicate with the end side, or else you can give the command to end side from the command center. So we are okay in both ways. Okay. So third-party attendance machine, can you support the third-party attendance machine also for this? Yeah, we have to look at the SDK and API, right? We have to look the SDK and API, and then we can commit. But yes, we are more than happy to take the SDK and API from the third-party brands and ready to integrate for that. Okay. So I think it's a very good questions we have received from all of our participants. बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और I think ये बहुत सारा knowledge उनको मिला होगा, बहुत सारी features उनको मिली होगी. So here we have discussed the question and answer. We have discussed the queries. I think we will, for all our audience, we will just highlight or provide the one video of the etc. Yes. So we'll clear the complete clarity about the pictures of how the functionality we have discussed. Through video, we will discuss it now. Sure. Leveraging multiple security systems can be challenging. With Hike Central Professional, a powerful integrated security platform, you can make smarter decisions dealing with a variety of security challenges. Built on a unified and flexible architecture, Hike Central Professional offers 9 major applications, such as video, access control, attendance, maintenance, and more. Users can connect security functions in an interactive way to build a truly integrated and unified system, enhancing their operational efficiency. And whatever your role,
Hike Central Professional will help you get up and running quickly. You can customize your own system according to specific duties or simply choose preset modes. You don't need to spend time digging through data anymore. Information collected in Hike Central Professional becomes easy to understand and access with its dynamic visual forms. The onboard interactive eMap enables management and security staff to get accurate and timely notifications while responding to incidents. It's powerful but light. You can have your own platform deployed with limited hardware costs and with simple, intuitive setup process. Ready to meet every security challenge with smarter decisions and simplified operations? Hike Central Professional. Versatile security in one platform. So right, we have seen the video of Hik Central. Hope you have enjoyed this Hik Central video and आपको सभी फीचर्स पता चली होगी. अभी क्विज क्वेश्चंस के विनर्स का नाम अनाउंस करते हैं. सो फर्स्ट क्विज क्वेश्चन विनर ज्योति खारे, एएस एंटरप्राइज लखनऊ. ज्योति खारे, एएस एंटरप्राइज लखनऊ. सेकंड क्विज क्वेश्चन विनर Venkatesh Reddy, Sri Sai Enterprise Bangalore. Venkatesh Reddy, Sri Sai Enterprises Bangalore. Congratulations to all the winner of today's quiz contest. Yes, Jyoti, thank you so much for answering this, and we definitely congratulate to as a winner. And then Venkatesh Reddy, many congratulations from our side, from Vic Central team. Thank you so much. So thank you so much, Maharaj ji, for coming today on this technology talk and sharing the lots of knowledge about the Hik Central Professional Software. IBMS 4266 बहुत ही अच्छा ये Hik Central Professional सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ ये आपको प्रोवाइड हो रहा है. So thank you so much for sharing the today's expertise of this command control and the Hik Central Professional feature. Thank you, Miliji. Thank you for having me here. Thank you so much for this session and giving me an opportunity to discuss about it. Thank you so much. So thank you so much all of you for joining us today. We will meet next time with next topic, new technology, new products and a new solution. Till then, take care, goodbye and have a nice day. Bye. Thank you so much.